نہیں مانگا میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، اب مانگ رہا ہوں تو خدا مانگ رہا ہوں۔ ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں حسنہ حسین کا لکھا ہوا خوبصورت لیٹسٹ ناول ابتحال۔ ہوپ فلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ آج اس ناول کی لیٹسٹ ایپیسوڈ 3 پارٹ 1 پیش کیا جا رہا ہے۔ جلدی سے میرے نئے ویورز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ناول اچھا لگے، تحریر اچھی لگے تو اچھا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں، چینل کو لائک کر دیا کریں تاکہ میرے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ابتحال کی ایپیسوڈ 3 پارٹ 1۔ میرے بس میں ہو تو کبھی کہیں کوئی شہر ایسا بساؤں میں، جہاں فاختاؤں کی پھڑپھڑاہٹ سے نغمہ زار حیات میں جھنجھناتی سانسوں کی جھانجریں چھنک اٹھیں تو دھنک کے رنگوں میں بھیگ جائیں حواس تک، جہاں چاند ماند نہ ہو کبھی، جہاں چاندنی کی ردا بنے میری بھانج دھرتی کے باسیوں کا لباس تک، جہاں صرف حکم یقین چلے، جہاں بے نشا ہو قیاس تک، جہاں آدمی کے نطق و لب پہ نہ شہریار کا خوف ہو، جہاں سرسرائے نہ آدمی کی رگوں میں کوئی ہراس تک، جہاں وہم ہو نہ دلوں میں وہم کا سہم ہو، جہاں سچ کو سچ سے ہو واسطہ، جہاں جگنوؤں کو ہوا دکھاتی ہو راستہ، جہاں خوشبوؤں سے بدلتی رت کو حسد نہ ہو، جہاں پستیوں سے بلندیوں کو بھی قد نہ ہو، جہاں خواب آنکھوں میں جگمگائیں تو جسم و جاں کے سبھی دریچوں میں تیرگی کا گزر نہ ہو، کوئی رات ایسی بسر نہ ہو کہ بشر کو اپنی خبر نہ ہو، جہاں داغ داغ سحر نہ ہو، جہاں کشتیاں ہوں رواں دواں تو سمندروں میں بھنور نہ ہو، جہاں برگ و بہار سے اجنبی کوئی شاخ کوئی شجر نہ ہو، جہاں چہچہاتے ہوئے پرندوں کو بارشوں کے عذاب کا ڈر نہ ہو۔ وہ آئلہ حدید تھی، اسلام آباد کے شفا کالج آف میڈیسن میں MBBS کے تیسرے سال کی طلبہ، مضبوط، نڈر، زندگی کے ہر موڑ، ہر آزمائش اور سختی پر شکست تسلیم نہ کرنے والی۔ اس کے تایا رفیق عثمان نے ہمیشہ اسے ہمت اور بہادری سکھائی تھی، زندگی کے گھر پڑھائے تھے، کامیابیوں کے راز بتائے تھے۔ وہ کوئی خواہش کرتی تو رفیق جھٹ سے پوری کر دیتے، کوئی خواب دیکھتی وہ تعبیر بن جاتے، دشوار راہوں کو اس کے لیے ہموار کر دیتے۔ میں ایک دن آپ کا ہر احسان چکاؤں گی ابو، وہ خوش ہو کر کہہ دیتی۔ وہ خوش ہو کر سن نہ پاتے، اکثر خفا ہو جاتے، ڈانٹ بھی پلا دیتے کہ یہ ان کا فرض ہے، احسان نہیں۔ مگر ناصرہ تائی کے خیالات ان سے مختلف ہوتے، سوچ جدا گانا، وہ اکثر تلخ ہو جاتی۔ یہ جو اتنا پیسہ آپ اس لڑکی پر لگا رہے ہیں، دیکھیے گا ایک دن یہ بھی آپ کے بھائی کی طرح آپ کو اکیلا کر جائے گی۔ ناصرہ تائی کو اکثر ان کی فیاضی پر غصہ آ جاتا۔ جو میں کر رہا ہوں وہ نیکی ہے ناصرہ، کس نے کہا مجھے اس بچی سے کچھ چاہیے؟ ان کا لہجہ نرم، ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک رہتی۔ قطعاً برا مانے بنا وہ محبت سے جواب دے کر بحث وہیں ختم کر دیتے، اسے دیکھتے اور مسکرا دیتے، آنکھوں سے اشارہ کر کے سمجھا بھی دیتے کہ تائی ہے، بڑی ہے، ایسا ویسا بول دیتی ہے، برا نہ مانو، اور وہ اس بات میں سر کو جنبش دے دیتی اور وہ برا نہ مانتی۔ بھلا تائی ایسا سوچتی بھی کیسے ہے کہ وہ رفیق عثمان کو چھوڑ دے گی؟ حدید کی اولاد کیا حدید سے مختلف نہیں ہو سکتی؟ اس کے فیصلے اپنے باپ سے الگ نہیں ہو سکتے؟ ناصرہ کی ہر بات دل کو آزار کر دیتی۔ وہ آنے والے وقتوں میں بے حسی اور خود غرضی کا کچھ ایسا نقشہ کھینچتی کہ اس کا دل بند ہو جاتا۔ وقت ثابت کرے گا میں کتنی مختلف ہوں، وہ اکثر سوچتی، اکثر کہہ بھی دیتی۔ ناصرہ ہنس پڑتی، شروع میں سب یہی بولتے ہیں، مجھے دیکھو، کپڑے سلائی کر کر کے اپنے بہن بھائیوں کو تعلیم دلوائی تھی، رکھتا ہے کوئی میری خبر؟ کوئی ملنے آتا ہے مجھ سے؟ تلخی سے مسکرا کر پھر سے وہ اسے دیکھتی۔ یہ سب باتیں ہیں، کوئی کسی کے لیے نہیں رکتا، جو رک جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، جیسے میں، جیسے تمہارے تایا، جیسی وہ، جیسے تایا۔ رفیق منزل کے اس تاریک کمرے میں آئلہ حدید کی سسکیاں دب گئی تھی، ماضی کا شور حال پر حاوی ہونے لگا، اپنے مستقبل کا جو خاکہ اس نے کھینچ رکھا تھا اس کی لکیریں اب ٹیڑھی ہو رہی تھی، جو خواب اس نے دن کے اجالے میں دیکھے تھے وہ شب کی تاریکی میں کابوس ڈراؤنے خواب بن رہے تھے، جو خواہشات نجاح کامیاب زندگی سے جڑی تھیں وہ آج ناکامی کا روپ بن رہی تھی، جو رک جائیں وہ مٹ جاتے ہیں، جیسے میں، جیسے تمہارے تایا،
चारपाई पर एक ही पोजीशन में बैठे उसका जिस्म अकड़ चुका था। मोबाइल हाथों में थामे वो सुते हुए चेहरे के साथ सामने देख रही थी। उसने इतना रो लिया था कि आंखें गोया अब खाली हो चुकी थी। वो इतनी हसास कभी नहीं हुई थी। जिंदगी के मामलात में इतनी कमज़ोर भी कभी नहीं पड़ी थी। फैसले जल्दबाजी में उसने कभी नहीं किए थे, मगर करने में वक्त हमेशा वो बहुत कम ही लेती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था। 2 घंटों की सोचो विचार के बाद भी वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। जाल गहरा और मजबूत था जो उसके इतराफ में बिछाया गया था। मिसेस जहीर की मेहनत 6 सालों पर मुश्तमिल थी। एक पूरा सिनेरियो तरतीब देने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा था। वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकती थी। वो जान गई थी उनका इंतखाब सिर्फ वो ही क्यों थी, क्यों उनका हर मंसूबा उसके वजूद के बिना नामुकम्मल था, क्यों उन्हें अपनी तहरीर के उन्वान पर उसका नाम ही दरकार था। उसने अपना सर हाथों में दबाकर आंखें बंद कर ली थी। गहरी सांसें लेती वो अपने जहन को हर जानिब दौड़ाने लगी थी। कोई रास्ता, कोई हल, कोई ऐसा सिरा जिसे पकड़कर वो पाताल में उतरने से बच जाए, अशरफिया की जंग में हथियार ना बन पाए, कोई उसे इस्तेमाल ना कर सके, उसका इस्तेहसाल ना कर सके। मगर जहन में तारीकियों का समंदर था, वहशतों की लहरें थी और गहराइयों में सवाए शिकस्त खुर्दा जज्बात के और कोई शय ना थी। जिंदगी में पहली बार वो खुद को इतना बेबस महसूस कर रही थी। खुदा के लिए आइला, मेरी बच्चियों के लिए ये करवा घूंट पी लो आइला। एक जानिब नासरा ताई का चेहरा था, दूसरी जानिब मिसेस जहीर का सरापा था। वो सरापा जो रोशनियों में स्याही बनकर ठहरा हुआ था। हमारी हर जंग कामयाब व नाकाम तुम लोगों की वजह से होती है। उसने आंखें रगड़ कर साफ कर डाली, चेहरे की तरफ में बिखरी लिटों को समेट कर कानों के पीछे कर दिया। अपने ताया को याद करते, उनकी कुर्बानियों को सोचते उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। बहुत सख्त जिंदगी गुजारी थी उन्होंने, बहुत आजमाइशों से गुजर कर वो अब जीने के काबिल हुए थे। उनकी तकलीफ बड़ी थी, उनके दर्द बड़े थे। ऐसे में उस सदमे ने उन्हें मुकम्मल तोड़ कर रख दिया था। वो चोर नहीं थे, मगर अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहे थे। मिसेस जहीर की मौजूदगी में कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता था। इस लम्हे मिसेस जहीर को सोचते उसे अपने अंदर शदीद गुस्से का उबाल उठता महसूस हुआ था। उसकी सबज आंखों में शोलों की लपक आ ठहरी थी। उसने साइड टेबल पर रखा गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारा, फिर चीख उठी थी। इससे भी उसके अंदर भड़कती हुई आग सर्द नहीं पड़ सकी थी। उसके असाब मुतहम्मिल नहीं हो सके थे। दिल के जख्मों पर कोई मरहम नहीं लग सका था। मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। उसे फैसला करने में कुछ वक्त लगा, मगर उसने कर लिया। दिल पर भारी पत्थर रखे उसने मिसेस जहीर के नंबर पर मैसेज कर दिया। तवक्को के ऐन मुताबिक कुछ ही देर में जवाब मौसूल हो गया था। वो काफ़ी देर तक मोबाइल स्क्रीन पर उभरते उस जुमले पर निगाह जमाए रही, फिर अपनी जगह से उठी। अपने तासुरात में एक सर्द पन लिए उसने नहा धोकर कपड़े बदले। अपने हैंड बैग में ज़रूरत की चंद अशिया और एक सूट रखा, चंद कार्ड्स और अपने डॉक्यूमेंट्स संभाले। अपने लंबे स्याह बालों को जूड़े में मुकीद किए सर पर दुपट्टा लेती वो कमरे से बाहर आ गई थी। सामने ही राहदारी की उस जानिब ड्राइंग रूम था, जिसके वस्त में नासरा ताई जाए नमाज पर सजदा रेस दिखाई दे रही थी। उनकी सिसकियों की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। हाथ उठाए अब वो गिड़गिड़ा कर इस मुसीबत के टल जाने की दुआ कर रही थी जो उनकी जिंदगियों में आ ठहर गई थी। उनका दिल गम से फटा जा रहा था। ड्राइंग रूम की तारीकी में उन्हें अपनी पूरी जिंदगी अंधेर लग रही थी। सलाम फेर कर उन्होंने हाथ उठाए, कुछ देर तक दुआ करती रहीं, फिर अकब में आइला की मौजूदगी का एहसास करके उन्होंने बेख्तियार गर्दन घुमाई। सफ़ेद रंग के सादा शलवार सूट में मलबूस, स्याह रंग का दुपट्टा, स्वेटर जेब तन किए दुपट्टा सर पर लिए वो सुर्ख चेहरे के साथ उनके सामने खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी सबज आंखों में सुर्खी ठहरी थी, बड़े बड़े होंठ सख्ती से भींचे हुए, तासुरात में एकदम खामोशी ठहरी थी। उसे तैयार देखकर वो तस्बीह हाथ में पकड़े अपनी जगह से एक झटके से उठ खड़ी हुई थी। नंगे पांव फर्श पर चलती वो उसके पास आ गई थी। आंखों में बेयकीनी थी और शिद्दत से धड़कता दिल किसी अच्छी खबर का मुतमन्नी था। उनके घर के बैरूनी गेट के उस पार एक स्याह गाड़ी आ रुकी थी। अगली नशिस्त पर यूनिफॉर्म में मलबूस ड्राइवर बैठा था। पिछली नशिस्त पर रेशम विराजमान थी। मैं जा रही हूँ। नासरा की फटी फटी निगाहें उसके चेहरे पर गिर गई। छोड़कर जा रही हो हमें? अपनी जान बचा रही हो तुम भी?
आंसू उनकी आंखों से टूट कर गिरे। जिस्म लर्जा, आवाज़ कपकपाई। अपनी जान दांव पर लगा रही हूँ। अल्फाज उसके हलक से टूट कर निकले थे। वहशतें उसके आसपास मंडलाने लगी थी। अबू जब जेल से बाहर आए, तमाम तरकुव्वत और मजबूती के बावजूद उसकी आवाज़ रंध गई। खुश्क लबों को तर करके कुछ हिम्मत पकड़ते उसने सर उठाया। उनसे कहिएगा उनका भाई मुझे ले गया है। नासरा ताई पर एक लम्हे के लिए सख्ता तारी हुआ। दम साधे वो बेयकीन निगाहों से उसे देख कर रह गई। क्या फैसला हो गया? मुसीबतें टल गई? आसानियां हो गई? इतनी जल्दी, इतनी आसानी से? सजदे में मांगी गई दुआएं इतनी ताकत, आंखों से गिरते आंसुओं में इतनी तासीर, पुकार में इतनी कशिश। उनकी सदा यकीनन अर्श तक गई है। उनके लिए हल फौरी उतारा गया है। और रफ़ीक, उसे कब तक छोड़ेंगे वो लोग? कब तक वो घर आ जाएंगे? नासरा को अभी भी सिर्फ रफ़ीक की फिक्र थी। कल सुबह तक आ जाएंगे। सुख भरी सांस लेते उन्होंने बेइख्तियार अपने हाथ दुआ के लिए उठाए थे। फिर वो जाए नमाज पर सजदाए शुक्र में गिर गई थी। उनकी अल्लाह ने सुन ली थी। आयला हदीद की निगाहें उनके सजदे पर टिक गई। समात उनकी आवाज़ पर, तवज्जो उनकी पुकार पर ठहर गई। उन्होंने एक पल के लिए भी उसकी जानिब नहीं देखा, उसका चेहरा नहीं देखा, दर्द नहीं देखा। वो अलविदा कहने को उसके पास भी ना आई। वो खामोशी से गेट की जानिब भाड़ गई थी। दरवाज़ा खोले वो तारीख रात के आखिरी पहरों में घर से निकली तो उसके अकब में नासरा ने एक बार फिर सजदा किया था। सियाह कार की खिड़कियों से रेशम उसे देखती नजर आई। उसके तासुरात इंतहाई संजीदा थे। ड्राइवर ने फौरन उतरकर उसके लिए दरवाज़ा खोला था। अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाते उसने कदम बढ़ा दिए थे। वो गाड़ी में सवार हुई तो लगा मौत के उड़न खटोले पर सवार हो रही है। गाड़ी तारीख रास्ते से आगे को निकली तो रफ़ीक मंजिल के दरो दीवार पर सजे उसकी ज़िंदगी के तमाम रंग स्याह पड़ गए। किताबें राख का ढेर बन गई। तालीमी असनाद पर आग भड़ गई। नासरा सजदे से उठकर उसके कमरे में आ गई। अलमारी खोली। अब वो उसके कपड़े निकाल रही थी। रफ़ीक के आने से पहले उन्हें आयला का सामान वहाँ से हटाना था ताकि जब वो वापस आएँ तो उन्हें आयला के हवाले से कोई शक ना हो। वो यकीन करें कि आयला अपने वालिद के साथ जा चुकी है। कमरे से बाहर शब की स्याही में कई राज पोशीदा रह गए थे। कई झूठ सच और कई सच झूठ बन चुके थे। गाड़ी अपने सफ़र पर रवां दवां रह गई थी। आयला हदीद ने रफ़ीक के लिए अपनी ज़ात की कुर्बानी दे डाली थी। कसरे जलाल की ज़मीनी गहराइयों में बंद कमरे की तारीकियों में यकायक एक बल्ब रोशन हुआ था। मुतहरिक सलाखों की आवाज़ पर उसने मेज़ पर से सर उठाकर सामने देखा था। कदमों की एक चाप सलाखों के उस पार ठहर गई थी और एक उसके पास आकर थम गई थी। मालिक, आपसे बात करना चाहते हैं। मालिक के जिक्र पर ही नौजवान की आंखों की सुर्खी बढ़ गई थी। सलाखों के उस पार खड़ा लड़का हाथों में लालटेन थामे उस पर निगाहें जमाए हुए था। उसके चेहरे पर घबराहट आया थी। सामने दीवारें लगी स्क्रीन रोशन हो गई। वीडियो कॉल पर कोई था। उसने लब भींच कर उस चेहरे को देखा। ऑफिस कुर्सी पर विराजमान वो शख्स दाएं बाएं झूलते हुए उसे देख रहा था। बाल सलीके से जमे, दाढ़ी तराशीदा सी, सुर्खो सफेद रंगत, चेहरे के खदोखाल में कशिश, लबों पर मुस्कुराहट लिए। सुना है तुमने फरार की कोशिश की थी, इसी डर से नहीं आए तुम? वो बोला तो लहजे में गराहट थी। उसका बस नहीं चलता था इस शख्स को स्क्रीन से बाहर निकालकर फर्श पर पटक दे। डर तो इस वक्त तुम रहे हो। ऐसे नींद में खौफ से उठकर भाग जा रहे थे। किसे ढूंढ रहे थे? तुम्हारी मौत को। उस शख्स की हंसी बेसाख्ता थी। मेरी मौत जलाल पैलेस में क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसकी आंखें खून से सुर्ख होने लगी। जानकर खुशी हुई। वो मुस्कुराया। कितना अच्छा हो अगर हम दोस्तों की तरह बात करें। दुश्मनी निभाकर दोस्ती की बात करते हो। दुश्मनी? तुम इसे दुश्मनी कहते हो? वो उसके जवाब से महफूज हुआ था। सोचो, अगर मेरी दुश्मनी ऐसी है तो मेरी मोहब्बत कैसी होगी मिसम? कितनी बार बताऊं, मेरा नाम हिसम नहीं है। वो आंखों में नफरत लिए उसे भारी सांसों के साथ देखता रहा। हिसम नहीं है तो फिर क्या है बताओ? वो कोई जवाब नहीं दे सका। तुम्हें तो अपने नाम पर यकीन नहीं है, मेरे लफ्जों पर क्या होगा? टांग पर टांग जमाए वो ऑफिस चेयर के साथ पुश्त टकाते हुए गोया हुआ था। अरबाज उसके पीछे अपनी पुश्त पर हाथ बांधे सीधा खड़ा था। उसके अकब में सलाखों के उस पार खड़े शेर दिल ने गहरी सांस भरकर सारंग को देखा जो स्टेप्स पर बैठा था। अंदर क्या बात हो रही थी? उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। छोटे मालिक कोई गुंडे बुंडे हैं क्या? उसने गर्दन मोड़कर सारंग से पूछा।
सारंग अपनी गर्दन पीछे को झुकाए पथरीली छत को देख रहा था। उसका सवाल सुनकर नफी में गर्दन हिलाई, मगर उन्हें देखकर तो ऐसे लगता है जैसे जैसे वो किसी जहन्नुम से निकला हो। जुमला सारंग ने मुकम्मल किया। शेरदिल चुप हो गया। बड़े मालिक से उन्हें इतनी नफरत क्यों है? वो इस रास में नया शामिल हुआ था, उसे किसी बात का इल्म ना था। तुम्हारे छोटे मालिक की याददाश्त नहीं है, इसलिए। सारंग के अकब में और अंधेरे में गुम होती सीढ़ियों पर एक सरापा उभरा था, जिसका ना कोई साया था ना कोई आहट थी। याददाश्त नहीं है? शेरदिल हैरत ज़दा सा सारंग को देखने लगा। उन्हें जब कुछ याद नहीं है तो वो बड़े मालिक से इतनी नफरत। तुम्हें अगर कोई इस तरह कैद कर दे तो क्या तुम्हें इससे मोहब्बत होगी? शेरदिल का दिल बेख्तियार नफी में हिला। इसका मतलब है बड़े मालिक गलत कर रहे हैं। वो सही कर रहे हैं या गलत, इस पर सवाल करने का हमें कोई हक नहीं शेरू। शेरदिल चुप हो गया। उसका जहन अब उलझनों का शिकार हो रहा था। अगर छोटे साहिब की याददाश्त वापस आ गई तो क्या सब ठीक हो जाएगा? कुछ देर बाद उसने सोचा, हा, तुम्हारे छोटे साहिब इससे ज्यादा नफरत करेंगे तुम्हारे मालिक से, बल्कि जान पर आ जाएंगे। क्या ऐसी दुश्मनी है? बड़ी पुरानी दुश्मनी है। सीढ़ियों पर खड़ा हयोला तारीकी से जरकार रोशनी में आ गया। नाजुक नंगे पांव पथरीली सीढ़ियों पर पड़ने लगे। दाहिना हाथ दीवार पर मुतहर्रिक हुआ। टप टप करती पानी की बूंदों में सारंग ने यकायक रवानी महसूस की। शेरदिल को मजीद ना बोलने का इशारा करते वो अपनी जगह से उठ गया। कान के पास दाहिना हाथ ले आकर उसने सुनने की कोशिश की। क्या तुम सुन पा रहे हो? उसने शेरदिल से पूछा। क्या? पानी की आवाज। यहाँ तो ऐसी कोई आवाज नहीं है। पहले कम थी, अब ज्यादा है। निस्वानी वजूद उसके ऐन अकब में आन खड़ा हुआ। 7 रंगा मफलर आज भी हाथ में भीगा हुआ था। सारंग ने गर्दन घुमाकर ऊपर जाती सीढ़ियों को तारीकी तक देखा। वहां कोई ना था। मेरा वहम है, मेरा ख्याल है। उसने गहरी सांस भरकर अपनी लालटेन उठा ली। ऐन उसी लम्हे सलाखें स्लाइड कर गई थी। अरबाज बाहर आ चुका था। उसने जजाजी दरवाजा अपने अकब में बंद कर दिया। सारंग ने एक अचट्टी निगाह अरबाज पर डाली। समझ नहीं पा रहा बड़े मालिक ने शेरदिल को यहाँ आने की इजाजत क्यों दी है? ये हमारा सवाल नहीं है सारंग, अरबाज ने उसे टोका। शेरदिल ने दोनों की शक्ल देखी। खुश्क लबों को तर करते वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो तीनों ऊपरी दरवाजा खोलकर जा चुके थे। सीढ़ियों पर वो लड़की अभी भी खड़ी हुई थी। उसके 7 रंगे मफलर से पानी की बूंदें टप टप गिरने लगी थी। वो नीचे नकरई रोशनियों में नजर आते शीशे को देख रही थी, जिसके उस पार दीवार की ओट लिए सलाखों के हिसार में वो नौजवान अपना सर पकड़े बैठा हुआ था। हिसम नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ हिसम। मेज पर रखा शीशे का गुलदान उसने स्लाइड पर दे मारा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रहे हो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। उसने फिर कुर्सी उठाकर फर्श पर पटक दी थी। सीढ़ियों पर खड़ी वो लड़की उल्टे पांव वापस पलट गई थी। जहीर हाउस, इस्लामाबाद। रेशम के हमरा वो जहीर हाउस में दाखिल हुई तो इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। घर की तमाम रोशनियां हनूज मध्यम और सन्नाटे गहरे हो रहे थे। मिसेस जहीर लाउंज में उसके इंतजार में बैठी थी। कदमों की आहट पर उन्होंने सर उठाया, फिर उसे देखकर मुस्कुराई। तुमने कहा था वापस तुम मरकर ही आ सकती हो। बताओ, मरकर आई हो या जिंदा हो? अभी ये तो वक्त बताएगा मैं आपके पास जिंदा होकर आई हूँ या मुर्दा बन के। मिसेस जहीर को उसके जवाब ने काफी महफूज कर दिया। वो बेख्तियार हंस दी। काफी गुस्से में लग रही हो। सिर्फ गुस्सा नहीं, उसके लब हिले, आवाज मजबूत। मुझे आपसे शदीद नफरत भी हो रही है। मुझसे नफरत? उन्होंने सवालिया आबरू उठाई। अपनी इस औलाद के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, आप किसी और की औलाद को खतरे में डाल रही हैं। आई बिलीव तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे पहले ही तुम्हें इस खतरे में डाल चुके हैं। मेरे पेरेंट्स मेरी जिंदगी में नहीं हैं। आप उन्हें मेरे मामलात में भी मत लाएं। लाना ज़रूरी है ताकि तुम अपनी पोजीशन और सिचुएशन को अच्छे से समझ सको। रफ़ीक अगर जेल में रहा तो बाहर तुम क्या करोगी? पढ़ाई मुकम्मल कर पाओगी या तुम्हारी ताई नासरा वो उसके बगैर ज़िंदगी गुजार पाएंगी? ये मेरे सवाल का जवाब हरगिज़ नहीं है। जवाब तो है, चाहे किसी भी सवाल का हो। मैं कोई हथियार नहीं हूँ जिसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। मेरे लिए तो हो। आंखों में सख्ती लिए वो दम साधे उन्हें देखती रही। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी, एक नई पहचान दे रही हूँ डियर। इस एक काम के बदले जो तुम मेरे लिए करोगी। आयला ने लब भींच कर अपना गुस्सा दबा लिया था। इस काम के बाद आप, मैं
और कातिल में क्या फर्क रह जाएगा? वो कत्ल जुल्म, ये कत्ल इंसाफ। ये उनकी आंखों में शोलों की लपक थी। फिर वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आई। तुम्हें मैं ही गलत लग रही होंगी क्योंकि तुमने अपनी औलाद के टुकड़े नहीं देखे, उसकी मसख शुदा लाश को नहीं छुआ तुमने। तुम्हें किसी ने उसकी तशद्दुद ज़दा तस्वीरें भी नहीं भेजी। उनकी स्याह आंखों में वहशतें उतर आई थी। उनके चेहरे के तासुरात में गम शिद्दत नजर आने लगी थी। उनकी आवाज़ में दर्द की सख्ती आयला हदीद के रोंगटे खड़े कर गई थी। मिसेस ज़हीर पहली बार उसे एक मुश्तअल माँ के तौर पर नजर आई थी। वो कुछ देर तक उन्हें तासुरात के साथ उसे देखती रही, फिर गहरी सांस भरकर अपना रुख बदल गई। घुंघराले बालों में उंगलियां चलाते वो यहाँ वहाँ देखते गहरी सांस लेती रही, फिर अपने असाब पर काबू पाकर उसकी तरफ पहले जैसे तासुरात के साथ मुड़ी और मुस्कुरा दी। आओ बैठकर बात करते हैं। खुश इखलाकी का मुजाहिरा करते वो सोफे पर जा बैठी। जब तक मेरे ताया जान जेल से बाहर नहीं आ जाते कोई बात नहीं होगी। उसका इरादा वाज़िया और लहजा हतमी था। मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा लगा। उन्होंने मुस्कुराकर अपना मोबाइल उठा लिया। खालिस इंग्लिश में उन्होंने दूसरी तरफ किसी से बात की। ये काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। हुक्म देकर उन्होंने कॉल काट दी थी। फिर उन्होंने एक बार फिर उसे बैठने का इशारा किया था। अपने बैग की स्ट्रिप्स पर गिरफ्त जमाए वो सिंगल सोफे पर उनके सामने बैठ गई थी। खाने का इंतजाम करो रेशम। इस सदमे में बेचारी ने कहाँ कुछ खाया होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो सख्त लहजे में गोया हुई। ठीक है, सो जाओ, आराम कर लो कुछ देर के लिए। रेशम, गेस्ट रूम में ले जाओ इसे। जब तक ताया जेल से बाहर नहीं आ जाते मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। मिसेस ज़हीर के तासुरात में संजीदगी आ गई। आयला हदीद उनकी आंखों में आंखें डाले बैठी थी। तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं? भरोसा तो अब्बू को भी आप पर बहुत था। मिसेस ज़हीर मुस्कुरा कर रह गई। ठीक है, तुम यहाँ बैठकर इंतजार कर सकती हो, इंतहाई संजीदगी से कहकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। रफीक की आज़ादी तुम्हारी कैद है आयला, याद रखना। जब तक तुम मेरा काम नहीं कर देती तब तक अपने ताया को खतरे से बाहर मत समझना। मैं ये सारा खेल दोबारा भी रचा सकती हूँ। मैं अपना टारगेट अगली बार रफीक के बजाय फहद आयशा को भी बना सकती हूँ। एक अदा से सीढ़ियाँ चढ़ते वो नजरों से ओझल हो चुकी थी। रेशम महज चंद लम्हों के लिए वहां रुकी थी, फिर वो भी वहां से चली गई थी। उसकी अटकी हुई सांसें उस एक लम्हे में बहाल हुई। संजीदा तासुरात में यकायक वहशत उतर आई। कत्ल और वो अंदर से वो रेजा रेजा होने लगी। कैसे, आखिर कैसे? उसने बेबसी से अपना सर हथेलियों में गिरा लिया था। रात का जाने कौन सा पहर था कि इब्तहाल की आंख खुल गई थी। कमरे की नीम तारीकी में आतिशदान के सामने ही जाए नुमाज बिछाए मिराज सजदे रेज थी। करवट बदलकर अपना सर तकिए पर रखे वो खामोशी से उसे देखती रही। सजदा तवील से तवील तर होता गया और जब वो उठकर बैठी तो उसका चेहरा आंसुओं से तर था। जो लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलता है उसने तुम्हें बदलने के लिए क्या लिया? कुछ अजियत से आंखें मीच कर उसने दोबारा सजदा किया था। इब्तहाल उठकर बैठ गई। वो काफी देर तक उसे देखती रही, यहाँ तक कि मिराल अपनी तहज्जुद की नमाज से फारिग हो गई। ये रूटीन वो बचपन से देखती आ रही थी। ऐसी कोई रात मिराल की जिंदगी में नहीं आई थी जिसके आखिरी पहर में उसने नफल ना पढ़े हों या दुआ ना की हो। जाए नुमाज समेटते उसकी निगाह मिराल पर पड़ी तो लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट आ गई। जा गई हो तो नफल पढ़ लो, दुआ कर लो, इससे क्या होगा? अल्लाह राजी होगा, परेशानियां दूर होंगी। आप तो कई सालों से पढ़ रही हैं, आपकी परेशानी दूर हुई, अल्लाह राजी हुआ? मिराल ने मुसल्ला रख कर उसे देखा। जब अल्लाह आपको नहीं दे रहा मुझे क्यों देगा? वो मुझे दे रहा है, तुम्हें भी देगा। मुझे आपकी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मिराल अपनी जगह रुक गई। इनफैक्ट मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो आपको मिल रहा है, तो वो मांगो जो तुम्हें चाहिए। आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी भी नहीं होंगी। मिराल का दिल गहरे पाताल में जा गिरा। ऐसा नहीं है हाला, ऐसा ही है, हतमी लहजे में कहकर वो बिस्तर पर वापस लेट गई। वैसे आज आपने अपने अल्लाह से क्या मांगा? शाहजेब, उसकी मोहब्बत या मेरी मौत? हाला, मिराल ने तरफ कर उसे देखा था। उसने लिहाफ सर तक तान लिया। फजर नमाज की अदायगी के बाद गहरी सांस भरकर आयला ने दुआ के लिए अपने हाथ उठा लिए थे। उसने कुछ मांगने की कोशिश की पर मांग ना सकी। आवाज बैठी हुई थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सारी रात एक अंदरूनी जद्दाल में गुजर गई। रास्ते का इंतखाब उसने कर लिया था, अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। रेशम ने 8 बजे का वक्त बताया था। रफीक की रहाई चंद घंटों के
फासले पर थी और वही फासला उसके असाब पर भारी पड़ रहा था। एक दिल चाहा वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाए, अपने बाप से राब्ता कर ले या अपनी माँ के पास चली जाए, या फिर ज़मीन पर यूं रूपोश होकर कभी किसी को दिखाई ना दे। मगर ऐसा कुछ भी मुमकिन ना था। नमाज के बाद वो एक बार फिर सोफे पर बैठ गई थी। 8:30 बजे के करीब रेशम ऑफिस रूम से निकलकर उसके पास आ गई थी। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने स्क्रीन आयला के सामने कर दी थी। वादे के ऐन मुताबिक रफ़ीक को रहाई मिल चुकी थी। थाने से बाहर वो नासरा ताई और फाहद से मिलते नजर आ रहे थे। उनकी हालत अबतर हो चुकी थी। चंद हफ्तों में वो सालों के बीमार नजर आ रहे थे। वो रो रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। वो फाहद के गले काफी देर तक लगे रहे थे। चंद लम्हे पहले की वीडियो है। रेशम ने मोबाइल पीछे हटा लिया। जब वो घर पहुंच जाएगा तो उसकी अपडेट भी दे दूंगी। तुम बताओ, अब नाश्ता यही लोगी या गेस्ट रूम में जाना पसंद करोगी? गहरी सांस भरकर आयला ने अपने आंसू साफ कर डाले। खुश्क लबों पर जबान फेरते उसने सर उठा लिया। कमरे में जाना चाहूंगी। रेशम की मुस्कुराहट उबर कर खत्म हो गई। अच्छी बात है, तुम समझदारी से काम ले रही हो, और इससे भी अच्छा रहेगा अगर तुम कोई चालाकी ना करो। आयला की खामोश निगाहें उसके चेहरे पर जम गई। तुमसे पहले मैम ने जिस बंदे को हायर किया था उसने की थी चालाकी। उसने बाकायदा धोखा दे दिया था। जानती हो अब वो कहाँ है? आयला के हलक में कोई शय फंस गई थी। मगर तासुरात में सख्ती लिए वो उसकी आंखों में देखती रही थी। बिल्कुल दुरुस्त समझी। गोली मैंने ही चलाई थी, और याद रखना मेरा निशाना कभी खता नहीं होता। तो आप कर लेती ये काम? रेशम जाने को मुड़ी तो वो फौरन से बोल पड़ी। मरवान जलाल का निशाना भी आप ही लगा लेती। रेशम रुक गई। कहा ना, ये वो काम है जो तुम ज्यादा अच्छे से कर सकती हो। वो जा चुकी थी और आयला हदीद अपनी जगह बैठी रह गई थी। गुल वेलफेयर हाई स्कूल में घंटियां बज उठी थी। ब्रेक का वक्त हो चुका था। तमाम बच्चे क्लासेस से भागते दौड़ते बाहर नजर आ रहे थे। इस दौरान इब्तिहाल भी अपना बैग बंद करके बाहर आ गई थी। वो नीचे ग्राउंड की तरफ जा रही थी जब रमशा ने उसे आवाज देकर रोक लिया था। मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। जेबों में हाथ डाले वो उसके साथ चलने लगी। आई एम सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ काफी बदतमीजी की। मेरा ख्याल था तुमने मेरी डायरी पढ़ी होगी। मगर इब्तिहाल रुक गई। अब वो रमशा को देख रही थी। मगर अपनी वो डायरी तो मैं स्कूल लाती ही नहीं हूँ। उसने स्कार्फ का पल्लू गर्दन पर दुरुस्त किया। फिर उसने वो सवाल किया जो गुज़श्ता रात से उसे बेचैन किए हुए था। इब्तिहाल, तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला? अपनी आंखों में खामोशी लिए इब्तिहाल ने अब के रुक कर उसे देखा। क्या कैसे पता चला? जो तुमने उस दिन कहा। उसने बेकरारी से निचला लब काटा। क्या कहा था? मेरी माँ के बारे में, कि वो मुझे मार देगी। क्या ऐसा नहीं है? इब्तिहाल के सवाल पर वो आंखों में उलझन लिए उसे देख कर रह गई। वो लड़की उसकी पड़ोसन नहीं थी। उसके साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। वो उसके घर हालात से किसी तौर पर वाकिफ नहीं हो सकती थी। उसे उसकी माँ के रवैये का किसी तौर भी इल्म नहीं हो सकता था, क्योंकि वो जो कुछ भी करती थी बंद कमरे में करती थी। मार धार तशद्दुद अब रोज का मामूल था। तुमने कैसे? तुम्हें बुरा लगा मैंने तुमसे वो बात कही? रमशा का सर नफी में हिला। आंखों में नमी उतर आई। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके लिए फिक्र दिखाई थी। सगी माँ है। उसका सर नफी में हिला। वो स्वेटर की आस्तीन को खींचते अपना जख्म छुपा रही थी। तुमने बताया नहीं? तुम्हें किसने बताया इस बारे में? मेरे बारे में? तुम्हारे कलम ने। रमशा ने चौंक कर सर उठाया था। मेरा कलम? मजाक कर रही हो? वो मुस्कुरा कर संजीदा हुई। यही हाल रहा तो एक दिन सच में वो तुम्हें मार डालेगी। क्या तुम्हारे पास जिन्नात हैं? रमशा के चेहरे पर हरास फैल गया। किसी मखलूक का साया है तुम पर? क्या खबर ऐसा ही कुछ हो? क्या तुम डर रही हो? उसकी आंखों में शरारत थी। खौफ के बावजूद रमशा नफी में सर हिलाया। वेरी गुड। वो जाने को मुड़ी तो रमशा ने दोबारा पुकारा। क्या हम रोज साथ बैठ सकते हैं? इब्तिहाल रुक गई। रोजाना ताखीर से आने की वजह से दोनों को जगह एक साथ ही मिलती रही थी, और आज इब्तिहाल पहली रो में बैठ गई थी तो रमशा को लगा वो नाराज है। तब ही अपना जगह बदल चुकी है। इब्तिहाल ने चंद लम्हों के लिए कुछ सोचा, फिर इस बात में सर हिलाकर चली गई। गहरी सोच में डूबी रमशा वहां खड़ी रह गई थी। हरनाई का जंगल सर्द हवाओं की जद में था। दोपहर का वक्त था। ठंडी हवा चल रही थी। अम्मू जान बाहर बेंच पर बैठी थी। उनके करीब आग जल रही थी।
दूर दरख्तों के झुंड और बुलंदी से राकान अपने हम उम्र बच्चों के साथ भागता दौड़ता जा रहा था। उसकी चीखों पुकार की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थी। अखरोट के एक दरख्त की कटी हुई शाखों को पकड़ पकड़ कर वो ऊपर तक चढ़ गया था और कभी वो शाख से उल्टा लटक कर झूलने लगा था। उसके साथी भी फुर्तीले थे, मगर वो ऐसा करतब नहीं दिखा सकते थे जैसे वो दिखाता रहता था। शाख से झूलकर अब वो नीचे उतरा तो एक बार फिर बच्चों में दौड़ शुरू हो गई। रीच पॉइंट अम्मूजान का वो बेंच था जिस पर बैठकर वो डब्बे पर नक्श बना रही थी। चंद ही लम्हों में वो अपने तमाम साथियों को पीछे छोड़ता उन तक पहुंच गया था। जीत गया। वो पीछे उनकी कमर के गिर्द बाजू बांधे लिपट गया था। अम्मूजान उसका लम्स पाकर मुस्कुराई। उसके साथियों ने सोचा राकान तो जीत चुका, अब वो बेंच तक क्यों भागे। सो वो शोर मचाते दरख्तों के झुंड में गायब हो गए। अम्मूजान पूछे मुझसे, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या बनोगे? उनके हाथ में वुड का रोंग नाइफ थी। वो डब्बे की अकबी साइड पर नरगसी फूल का नक्श बना रही थी। मैं रेसर बनूंगा अम्मू, वो एक अज़म से बोला। मैं रोज रेस में सबसे जीत जाता हूँ। अम्मूजान ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। 2 रोज पहले तक उसका ख्वाब टीचर बनने का था। इससे पहले वो घुड़सवारी को अपना मुस्तकिबिल बना चुका था। एक बार रोटी के छोटे पेड़े को उसने अच्छे से गोल कर लिया तो उसने कहा वो बड़ा होकर शेफ बनेगा, रोटियां बनाया करेगा। अम्मूजान को वो हर रोटी फ्री में देगा। मैं तो इत्तेहाल से भी जीत सकता हूँ, मगर वो मेरे साथ दौड़ती नहीं है। अम्मूजान ने सर उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा भागने दौड़ने खेलने कूदने के बायस सुर्ख हो रहा था। आसमानी मफलर गर्दन से लिपट कर उसके सरों को उसने हाथों में पकड़ रखा था। ऊनी कैप ने कुछ बाल छुपा रखे थे और कुछ बाल उसके माथे पर और कानों में से भी नजर आ रहे थे। इसी लम्हे उन्हें राकान के अकब में चढ़ाई के रास्ते से एक खातून नीचे उतरती नजर आई। खातून के साथ उसका मुलाजिम भी था जो वहीं रुक गया था। जाओ खेलो, बॉक्स रखकर उन्होंने राकान से कहा, जो इसी वक्त मेज से कूदा और मशर की समत भागा। एहतियात से कदम उठाती खातून ने उस 8-9 साल बच्चे को बर्क रफ्तारी से भागते दौड़ते देखा। फिर वसी सब्जाजार पर कदम धरती अम्मूजान की तरफ जाने लगी। उसका लिबास स्याह फ्रॉक नुमा था, खुला डुल्ला सा, जिसकी तंग आस्तीनों पर उसने चंद कड़े पहन रखे थे। सर पर हैट के नीचे स्याह शॉल थी जिसे उसने ओढ़ रखा था और जिसके सिरों में उसका चेहरा काफी हद तक पोशीदा रहा था। राकान ने बुलंदियों से उस औरत को अम्मूजान के पास बेंच पर बैठते देखा और अपने साथियों के साथ नहर की तरफ भाग गया। जहीर हाउस के आलिशान गेस्ट रूम में वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। वो दीवार गिर खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे। कमरे की रोशनियां भी उसने मध्यम का रखी थी। मुलाजमा कुछ देर पहले उसे नाश्ता देकर गई थी जो मेज पर जूं का तूं पड़ा हुआ था। कुछ ही देर गुजरी कि वो दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई थी। दरवाजा खोलकर रेशम अंदर आ गई थी। मिसेस जहीर उसे ऊपर बुला रही थी। पैरों में जूते अरसते वो रेशम के पीछे बेहद खामोशी से सीढ़ियां चढ़ती ऊपरी मंजिल पर आ गई। यहाँ कई कमरे कई दरवाजे थे। लाउंज और राहदारियां थी। वो रेशम के साथ एक बंद दरवाजे के सामने रुक गई थी। रेशम ने दस्तक देकर उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया था। गहरी सांस भरकर हिम्मत मुजतमा करते वो अंदर दाखिल हो गई थी। वसी और अरीज कमरा सुर्ख और सफेद थीम में सजा हुआ था। मुनक्कश ब्राउन फर्नीचर की तरफ में पर्दे लटक रहे थे। खिड़कियों के पर्दे सुनहरी सफेद फर्श पर बिछा कालीन भी सुनहरी था। इन्हीं सुनहरी रंगों पर कई यादें बसी थी। कई ख्वाब बंद अलमारियों में ठहरे रह गए थे। कई किताबें बेजान सी रैक्स में पड़ी रह गई थी। सामने वाली दीवार पर परीसा लिखा था। वो नाम एक मरकज था। उस नाम के साथ कमरे की हर एक शय जुड़ी हुई थी। गो के बत्तियां जल रही थी, मगर फिर भी उसे इस कमरे की वसअत में तारीकी का एहसास हुआ था। वो तारीकी जो बेड पर बैठी मिसेस जहीर के वजह से मुड़ती आ रही थी। उनके बाल खुले हुए थे। उनकी आंखों में नमी ठहरी थी। तस्वीर का एक फ्रेम उनके हाथ में था और वो तस्वीर उनकी बेटी की थी। ये परीसा का कमरा है, प्यारा है ना? बात करते हुए उनकी आवाज से मोहब्बत झलकी। जिस तरह वो सेट करके गई थी बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है। मैंने उसकी एक चीज भी यहाँ से वहां नहीं की। आयला खामोश रही। उन्होंने तस्वीर का एक फ्रेम उसके सामने किया। उसने देखा तस्वीर के वस्त में एक हंसता मुस्कुराता नौजवान खड़ा था जिसके दाएं बाएं 3 लड़कियां खड़ी थी। परीसा, उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर उंगली रखी। ये नायाब है। उन्होंने दूसरी लड़की का चेहरा छुआ। और ये जरगुल है। उनकी उंगली अब तीसरी लड़की पर आ ठहरी थी। तुम्हें शायद हैरत हो ये जान के कि
मरवान के साथ खड़ी इन 3 लड़कियों में कोई एक भी जिंदा नहीं है। आयला हदीद सांस नहीं ले सकी थी। उसकी आंखों में हैरत और खौफ के जज्बात एक साथ उमड़ आए थे। गहरी सांस भरकर अब वो सामने देखने लगी थी। मैंने प्रीसा को बहुत समझाया था। मैंने उसे कहा था ना, नायाब की मौत को नज़रअंदाज मत करो, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। उसे मरवान के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता था। उन्होंने फिर उठकर वार्डरोब के सारे खाने खोल दिए। प्रीसा के दीदा जेब महंगे मलबूसा से अलमारी भरी पड़ी थी। दराजों में उसके गोल्ड और डायमंड के सेट चमक रहे थे। अंगूठियों का कलेक्शन 4 बड़े डिब्बों पर मुश्तमिल था। उसके नाम पर जितनी जायदादें और प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, वो कागजात भी वहीं रखे हुए थे। मिसिस जहीर ने एक एक शय उसे दिखाई थी। अपनी नम आंखों में एक अलवाही सी चमक लिए वो उसकी तरफ मुड़ी। बस एक बार तुम मरवान की जान ले लो, ये सब तुम्हारा होगा। आयला हदीद के अंदर सन्नाटे छा गए थे। अपनी हर वो प्रॉपर्टी जो मैंने प्रीसा के लिए खरीदी थी तुम्हारे नाम कर दूंगी। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ आयला। बदले में मुझे बस वो लड़का मुर्दा चाहिए। ये सब कैसे होगा? उनके बराबर में बैठे अपने तासुरात में हनूज खामोशी और सर्द मोहरी लिए उसने सीधा सवाल किया था। मिसेस जहीर के अज़ाइम से वो आगाह थी, मगर प्लानिंग पर अभी कोई बात नहीं हुई थी। वो उनके जहन तक पहुंचना चाहती थी, उनकी चाल को समझना चाहती थी। मिसेस जहीर कुछ देर गहरी सोच में गुम प्रीसा की कोई और तस्वीर देखती रही। फिर उन्होंने सर उठाया। मैंने प्रीसा को कसरे जलाल में भेजा था, मैं तुम्हें भी वहां भेजूंगी। आयला की धड़कन शदीद हुई। फर्क हैसियत और पोजीशन में होगा। तुम वहां एक हाउस मैनेजर के तौर पर जाओगी। आंखों में हैरत लिए वो खामोशी से उन्हें देखती रही। 2 माह पहले उनकी साबका हाउस मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया था। तब से वो जरका क्रस्ट स्टेट से राब्ते में है एक नई हाउस मैनेजर के लिए, और जरका ओनर मेरी दोस्त है। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उन्होंने कुछ सोचा। पिछले माह भी उसने कुछ प्रोफाइल्स भेजी थी, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। यकम को वो दोबारा भेजेगी और उनमें इस बार तुम्हारा नाम भी शामिल होगा। आयला ने उनकी पूरी बात सांस रोक कर सुनी थी। मिसेस जहीर ने तमाम मामलात तय कर रखे थे। उनका प्लान मुकम्मल था, मगर मेरा इन मामलात में कोई तजुर्बा नहीं है, उसने साफ कह दिया। क्या तुम्हें पहले भी कभी किसी तजुर्बे की जरूरत पड़ी है आयला? उनका सवाल आयला हदीद को लाजवाब कर गया। एक बार बस देखती हो और सीख जाती हो। सीखना अलग बात है, उसे अप्लाई करना अलग है। तुम्हें क्या लगता है आयला, मैं बेवकूफ़ हूँ? अब के मिसेस जहीर ने अपने तासुरात में सख्ती ठहरा ली। तुम्हें जानती नहीं हूँ। आयला के लब सख्ती से भींच गए। तुम सिर्फ देखती तो नहीं हो, सब रिकॉर्ड करती हो। कोई भी बात तुम्हारे जहन से महव नहीं हो सकती। वो चुप रही। तुम मरवान जलाल की एक एक हरकत को बेहतर समझ सकती हो, उसके मूड पर पड़क सकती हो। कसरे जलाल राजों से भरा है, और मैं ये भी जानती हूँ मरवान बगैर किसी वजह के दवारियान में नहीं रुका। कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। ये भी तो हो सकता है आप मेरी प्रोफाइल भेजें और वो मुझे रिजेक्ट कर दें। उसने एक और नुक्ता उठाया। मरवान का बटलर अरबाज हमेशा अपने मालिक और कसरे जलाल के लिए बेहतरीन की तलाश में रहता है। पिछली बार मेल और फीमेल दोनों काबिल नाम मौजूद थे, मगर तफसीलात पढ़कर उसने रिजेक्ट कर दिए। जानती हो क्यों? उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खला हमने छोड़ा था, क्योंकि हम चाहते थे वो रिजेक्ट हों। तो अब इस एक माह में क्या क्या होगा? तुम्हें कल ही रेशम जरका क्रस्ट ले जाएगी। उनकी पूरी टीम है, स्टाफ है। वो तुम्हें इलीट रहन सहन और उनकी खिदमतदारियों के तमाम गुर सिखाएंगे। तुम्हें वहाँ काम कैसे करना है, कैसे रहना है, और कैसे एक प्रोफेशनल हाउस मैनेजर के तौर पर उभर कर सामने आना है, सब कुछ। वो मेरा बैकग्राउंड चेक भी तो कर सकते हैं। वो जान भी तो सकते हैं कि मुझे प्लांट किया जा रहा है। हम तुम्हारी कहानी में कोई ऐसा रद्दोबदल नहीं कर रहे जिसकी बुनियाद पर यह सवाल उनके जहन में आए। तुम हदीद और उमारा की बेटी हो। दोनों ने अलहदा होकर अपने घर बसा लिए। तुम अपने ताया के यहाँ पली भरी, उनके साथ तुम्हारे टर्म्स अच्छे नहीं। जल्द ही तुमने जरका क्रस्ट अकेडमी ज्वाइन कर ली, कोर्सेज किए, ज़बानें सीखी और फिर यहाँ से अप्लाई कर दिया, और अब तुम पहली बार कहीं काम करने वाली हो। उन्होंने कहानी का पूरा प्लाट तरतीब देकर उसे किरदार बना डाला था। पहली बार? उसने पुरसोच अंदाज में उन्हें देखा। वो क्यों एक ऐसी हाउस मैनेजर को हायर करेंगे जिसका तजुर्बा पहले कहीं भी नहीं रहा? यही तो प्लस पॉइंट है। मिसेस जहीर शैतानियत से मुस्कुराई।
خیر دیکھتے ہیں تمہاری قسمت کیا بلٹا دکھاتی ہے۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی انٹرویو کے دوران ہی کچھ ایسا ہو جائے جس کی بنا پر ارباز اسے رد کر دے، کوئی غلطی کوتاہی، کوئی جھوٹ پکڑا جائے، کوئی شک سامنے آ جائے۔ ممکن ہے قصر جلال پہنچنے سے پہلے ہی یہ قصہ تمام ہو جائے۔ دل میں امید لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے ریشم کے پیچھے چلتے ہوئے اس نے اپنا ذہن اس ایک لمحے میں ہر جانب دوڑا لیا تھا، ہر ممکنہ خطرے کو جانچ لیا تھا، ہر ممکنہ حساب کو پرکھ لیا تھا۔ مروان جلال اور مسز ظہیر دونوں کی جنگ میں وہ ایک ہتھیار بنی وسط میں کھڑی تھی۔